حاضرین جمعہ، بزرگوں، علماء کرام، عزیز بچوں، مصلیان عظام، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے، جس نے ہمیں دوستی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کو قدم قدم پر رہنمائی فرمایا اور اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ انہی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم دوستی کے حوالے سے ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی کہ دوستی کیا ہے، کسے دوست اپنانا چاہیے، دوستی کا معیار کیا ہے اور دوستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور دوستی کرنے سے اعمال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں کی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا۔ ظالم سے مراد اللہ رب العالمین کا نافرمان، اللہ رب العالمین کی بات نہ ماننے والا مجرم شخص، وہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کو چبائے گا افسوس کرتے ہوئے، چاہے وہ کافر ہو یا وہ منافق ہو یا وہ فاسق ہو، اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور چباتے ہوئے کہے گا اے کاش میں رسول کا ساتھ اپنا لیا ہوتا، اے کاش میں رسول کی اتباع کر لیا ہوتا، اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیا ہوتا، اور کہے گا کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے ہدایت آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد اپنے جہنم میں داخل ہونے کے اسباب پر غور کریں گے تو اس میں ایک سبب یہ بھی نظر آئے گا کہ میں جو جہنم میں پہنچا ہوں، جہنم میں جل رہا ہوں، جہنمی یہ سوچے گا کہ میرے جہنم میں آنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ میں نے برے دوست اپنایا تھا، بری دوستی اپنائی تھی، برے لوگوں کی صحبت اختیار کیا تھا، بری سنگت میں رہتا تھا، اور جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جھلس رہا ہوں، آج میں جہنم میں جل رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر زمانے اور ہر دور میں آپ دیکھیں گے اچھے دوست اور اچھی دوستی انسان کے ہدایت کا سبب ہوتی ہے، اور برے دوست اور بری دوستی انسان کے ضلالت و گمراہی کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ اچھا دوست اور اچھی دوستی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازش ہے، اور برے دوست انسان کے لیے بری دوستی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اچھے دوست اپنانا چاہیے جو ہمیں کتاب و سنت کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف لے کر کے جانے والے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق، کہ جب اللہ رب العالمین کسی امیر کے ساتھ اچھائی اور اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، جب کسی امیر کے ساتھ، کسی بادشاہ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اسے اچھے وزراء سے، اچھے وزیروں سے نواز دیتے ہیں۔ وزراء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امیر، اگر حاکم ان نسي ذکرہ، اگر وہ کوئی چیز بھول جاتا ہے تو اسے وہ وزراء یاد دلاتے ہیں، اور اگر وہ یاد رکھتا ہے وَإِن ذَكَرَهُ وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، اگر اسے وہ چیز یاد رہتی ہے تو وہ وزراء اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کسی بادشاہ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اسے اچھے وزیروں سے نوازتے ہیں، کیونکہ بادشاہ وزیر کی زبان سے بولتا ہے، وزیر کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وزیر کے کان سے سنتا ہے۔ جب اس کو اچھے وزراء ملیں گے تو معاشرے کے اندر امن پھیلے گا، معاشرے کے اندر انصاف ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی امیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی کا معاملہ
کرتے हैं तो अच्छे वजीर से नवाज देते हैं। और आगे फरमाया अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बादशाह के साथ इसके अलावा का मामला करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जो है बुरे वज़रा से नवाज देते हैं। बुरे वज़रा का काम ये होता है कि अगर बादशाह कोई चीज भूल जाता है वइन नसिया लम युज़क्किरहु, अगर बादशाह कोई चीज भूल जाता है तो वज़रा याद नहीं दिलाते, वइन ज़क्करहु लम युइन, और अगर याद भी दिला देते हैं वज़रा तो वो मदद नहीं करते। गोया कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया है कि अच्छे दोस्त और अच्छी दोस्ती इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है और ये हिदायत का जरिया है, और बुरे दोस्त ये इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। हाज़रीन जुमा, दोस्ती ये इंसान की फितरी जरूरत है। हर इंसान ये चाहता है, हर इंसान की ये जरूरत होती है कि उसका एक दोस्त हो जो उसकी मदद करे, उसका एक ऐसा दोस्त हो जिससे अपने दुख दर्द को बयान कर सके, उसका एक ऐसा दोस्त हो जिससे वो मशवरा कर सके, उसका ऐसा दोस्त हो जो मसाइब व आलाम में उसकी हेल्प कर सके। इंसान की ये फितरी जरूरत है। दोस्ती की वजह से इंसान के आमाल पर क्या असरात मुरतब होते हैं, आप उस पर गौर करेंगे तो ये चीज समझ में आएगी कि एक इंसान जो है दोस्त के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारता है, उसके साथ उठता है, बैठता है, चलता फिरता है, उसके साथ सफर करता है, तो उससे बहुत सारी चीजों को अख्ज़ कर देता है। इसी वजह से ज़माने जाहिलियत के शायर सरफत बिन अब्द ने कहा अनिल मर्इ ला तसल वसल अन करीनिही, अगर किसी इंसान को जानना हो तो उसके दोस्त को देख लो, उसके हल्के यारा को देख लो कि उसके साथ उठने बैठने वाले लोग कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो वो अच्छा शख्स है, अगर उसके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग बुरे हैं तो समझ लो कि बुरे लोगों को अपना उसने दोस्त बनाया है। इस जमाने जाहिलियत में तसव्वुर था और इस्लाम ने भी इस तसव्वुर को बरकरार रखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए से अपनी उम्मत को समझाया और उकसाया और उभारा है इस बात की तरफ कि लोगों अच्छी सोहबत अख्तियार करो, अच्छे दोस्त अपनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया कि अच्छे दोस्त की मिसाल मुश्क बेचने वाले की तरह है, इत्र फरोश की तरह है जो मुश्क बेचता है। मुश्क ये खुशबुओं में सबसे आला किस्म की खुशबू होती है, कहा मुश्क बेचने वाले की तरह है। फायदा उससे क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हदीस में बयान फरमा दिया कि जब दोस्ती अपनाएगा किसी इत्र फरोश से इंसान, तो वो उसका दोस्त जो इत्र बेच रहा है वो उसको हदिया कर देगा, और अगर हदिया नहीं करेगा तो इंसान उसको खरीद लेगा, और अगर खरीदेगा नहीं तो उसका दोस्त जो इत्र फरोश है वो उसके कपड़े में इत्र को लगा देगा, वो उस इत्र से महदूद होगा, उससे इस्तेफादा करेगा और उसका फायदा होगा। गोया कि इत्र फरोश के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल अच्छे साथी की बयान की है कि अगर इंसान अच्छी सोहबत अख्तियार करेगा, नेक लोगों के साथ रहेगा, दीनदार लोगों के साथ रहेगा, नमाजियों के साथ रहेगा, मुआहिदीन के साथ रहेगा, तो उसके अंदर वो चीज दाखिल हो जाएगी। अगर अहले तक़वा के साथ रहेगा तो वो मुत्तकी बनने की कोशिश करेगा, अगर नमाजियों के साथ रहेगा, उनकी सोहबत अख्तियार करेगा, उनके साथ दोस्ती अपनाएगा तो वो भी नमाज की तरफ आगे आएगा। अमानतदारों के साथ रहेगा तो उसके अंदर भी अमानतदारी आएगी, और अखलाकमंदों के साथ रहेगा उसके अंदर भी अच्छे अखलाक आएंगे। गोया कि एक इंसान जब दोस्ती अपनाता है, किसी को दोस्त बनाता है, तो उसकी अच्छी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही मिसाल के जरिए से समझाया है कि जो है इत्र फरोश की तरह से अच्छे दोस्त की मिसाल है कि इत्र फरोश शख्स जो होता है वो हर माने में मुफीद होता है अपने दोस्त के लिए। या तो हदिया कर देगा इत्र, या तो उसे बेच देगा, या तो कुछ नहीं तो कम से कम उसके कपड़े में लगा देगा तो उससे फायदा होगा। ऐसे इंसान जब अच्छे दोस्त अपनाता है तो दोस्त के जरिए से बहुत सारी चीजें अपने अंदर कॉपी कर लेता है। और बुरे सोहबत और बुरे दोस्त की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया किस चीज के जरिए से? कहा लोहार के जरिए से, कहा लोहार के जरिए से मिसाल दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लोहार जब वो अपनी भट्टी को तपाता है तो क्या होता है कि अगर आप उसके पास रहेंगे तो उसकी चिंगारी आएगी और आपके कपड़े को जला देगी, और अगर चिंगारी नहीं आई तो धुआं जो उठेगा उससे आपको तकलीफ होगी, उससे आपको मशक्कत और परेशानी होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे दोस्त की मिसाल जो है लोहार के जरिए से दी है
کہ برے دوست کی مثال یہی ہے کہ آپ لوہار کے پاس اگر جاتے ہیں تو کم سے کم آپ کا کپڑا متاثر ہوگا، آپ کا کپڑا متاثر ہوگا، آپ اس کے دھوئیں سے پریشان ہوں گے۔ ایسے ہی اگر اپنے زندگی میں آپ نے برے دوستوں کو اپنایا، برے ساتھیوں کو اپنایا، برے لوگوں کی سنگت اختیار کیا تو یہی ہوگا کہ ان کی برائی آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگی، آپ ان کی برائیوں کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کے اندر پائے جانے والے عادات و اطوار کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے دوست کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر وہ گمراہی کی طرف گیا ہے تو آپ بھی گمراہی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے دوست کا انتخاب کریں۔ اچھے دوست ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہیں اور آخرت میں بھی مفید رہیں گے، ان سے آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ دوستی کی وجہ سے انسان کے اعمال پر کتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں اس کو واقعات کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا عم لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ۔ کہا اے میرے عم محترم، اے میرے چچا جان، دھیرے سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیجئے، کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کر لیجئے، میں اللہ کے یہاں حجت پیش کروں گا۔ وہ دل سے تو مانتے تھے، دین اسلام کا سپورٹ کرتے تھے، نبی کا سپورٹ کرتے تھے اور دین کی تعلیمات کا سپورٹ کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا۔ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے یہاں حجت پیش کروں گا۔ اور وہیں ابو طالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جیسے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ورغلاتے رہتے ہیں۔ ابو طالب کو کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آخری وقت میں، آخری سانسوں میں تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم بددین ہونا چاہتے ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا چاہتے ہو؟ ورغلاتے رہے، بار بار کہتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آؤں گا، آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ پھر جو ہے ان کے ساتھی لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ، وہ ورغلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرنا چاہتے ہو۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے لیے کہا، اور تیسری مرتبہ ان کے ساتھیوں نے پھر ورغلایا اور کہا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے تو دنیا کیا کہے گی کہ پوری زندگی باپ دادا کے دین پر اور دھرم پر رہا اور آخری وقت میں اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا۔ اس وقت ایک جملہ کہا تھا ابو طالب نے، کہا کہ انی اوثر النار علی العار، کہ میں اس قوم کے عار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور کفر پر وفات ہوئی اور کہا انی اوثر النار علی العار، کہ مجھے قوم جو عار دلا رہی ہے یہ عار مجھے برداشت نہیں ہے، میں جہنم کی آگ کو برداشت تو کر لوں گا لیکن میرے قوم کے لوگ جو مجھے عار دلا رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کرنا چاہتے ہو، یہ عار مجھے برداشت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس میں غور کریے کہ ابو طالب کو دین سے پھرنے کا جو بہت بڑا بنیادی سبب رہا اور کلمہ توحید کے اقرار کرنے سے جو لوگ روکنے والے تھے ان کے اصحاب تھے، ان کے ساتھی تھے، جو آخری وقت میں ان کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے اور بار بار ان پر زور زبردستی کرتے رہے اور ان کو ورغلاتے رہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ اپنانا، کلمہ توحید کو نہ اپنانا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ورغلا رہے تھے۔ اسی طرح سے اگر ہم دنیا میں اپنے برے ساتھی اپنائیں گے تو برے ساتھی ہم کو بھیانک انجام تک پہنچائیں گے، برے ساتھی ہم کو بری عادتوں کی طرف لے کر کے جائیں گے اور برائی میں ہمیں ملوث کرا دیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک دوسرا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے عقبہ بن ابی معیط کا۔ عقبہ بن ابی معیط یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اسلام کا جانی دشمن تھا،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहता था, लेकिन एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा आता है कि उसका दिल इस्लाम के लिए नर्म हो जाता है। वो कोशिश करता है, वो चाहता है, वो जाहिर करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को मान ले, इस्लाम ले आए, कलमे तौहीद अपनी जुबान से कलमे तौहीद का इकरार कर ले। और फौरन ये खबर होती है उमैया बिन खलफ को। उमैया बिन खलफ जब सुनता है कि उक़बा बिन अबी मुआयद ये एक मुशर्रफ इस्लाम होने वाला है, इस्लाम में दाखिल होने की रग़बत का इजहार कर रहा है, चल करके इसके पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम मोहम्मद के दीन को एक्सेप्ट करने वाला है, मोहम्मद के दीन को कबूल करने वाला है। क्या आखिरी वक्त में अपने आबा व अजदाद के दीन को तो छोड़ेगा? क्या इन अय्याम में अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़ करके कलमे तौहीद का इक़रारी बन करके दीन इस्लाम में दाखिल होगा? ये बड़ी आर की बात है, बड़ी शर्म की बात है। हम अपने आबा व अजदाद की परंपरा और उनकी आदतों और उनके अदियान को और उनके अकायद को छोड़ दें, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बिलाखिर वो आज़्म कर चुका था दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए, उनके साथियों ने इतना इसरार किया कि वो कलमे तौहीद नहीं कह सका, वो मुशर्रफ इस्लाम नहीं हो सका। और इसी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका पस मंजर बयान किया है, जो आयत खुतबे मसनूना के बाद बयान की गई है कि यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कि जालिम शख्स जो अपने हाथ को चबाएगा और चबा करके कहेगा ऐ काश मैंने रसूल की बात मान ली होती, ऐ काश मैंने रसूल की इत्तबा कर लिया होता, मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया होता, ऐ काश मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, ऐ काश फलां से अपनी दोस्ती अपनाई नहीं होती तो वो दोस्त मुझे आकर के मिसगाइड नहीं करता, मुझे आकर के गुमराह नहीं करता। इस दोस्ती ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, इस दोस्ती की वजह से आज मैं जहन्नम में दाखिल हो गया हूँ और जहन्नम में झुलस रहा हूँ। अफसोस करेगा, कैसे अफसोस मिलेगा और कहेगा कि काश मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। जहन्नम में दाखिल होने के बाद वो इजहार करेगा कि ये बुरी दोस्ती ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाया है। तो पता है चला कि अगर हम बुरी दोस्ती अपनाएंगे तो उसका नतीजा बड़ा बुरा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे दोस्त अपनाएं, अच्छी दोस्ती हो और जो है किताब और सुन्नत के मुताबिक हमारे दोस्त होने चाहिए। और इसी तरह से आप देखिए कुरान करीम के अंदर सूरह साफ़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और वाक़या बयान किया है, फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, कि जो दोस्त दुनिया में दोस्त हुआ करते हैं, जो दोस्त दुनिया में दोस्त हुआ करते हैं वो आखिरत में भी उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह साफ़ात के अंदर बयान फरमाया फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, कि बात बात से सवाल करेंगे, बात बात से जन्नत में मिलेंगे एक दूसरे से, एक साथी दूसरे साथी से मिलेगा और मिल करके आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे और कहेंगे कि एक हमारा दोस्त था दुनिया के अंदर जो कहता था कि तुम लोग जो है आखिरत की तस्दीक करते हो, तुम लोग कहते हो कि जब हम मर जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे। वो एक दोस्त ऐसा कहता था और हमें कहता था कि तुम ये अकीदा क्यों रखते हो कि हम जब मर जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे। उस दोस्त को जन्नती दोस्त याद करेंगे, उस हल्के में बैठ करके एक चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद उनके दिल में आएगा कि चलो देखते हैं अपने दोस्त को जो दुनिया में हमारे साथ था लेकिन वो हमें गुमराह करना चाहता था, हमें बास बादल मौत का मुनकिर बनाना चाहता था, लेकिन हम उसके झांसे में ना आए, हमने उनकी बात नहीं मानी, चलो देखते हैं कि उसका अंजाम क्या है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींचा है, फत्तला फरआहु फी सवाइल जहीम। ये जन्नती दोस्त अपनी दोस्ती को, दुनिया के यारों को याद करेंगे और कहेंगे हमारा एक यार और एक दोस्त था जो दुनिया के अंदर ये कहता था कि बाद मादल मौत पर तुम ईमान लाते हो, चल कर जाएंगे जब हम दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे। बहुत बुरी बात है और बहुत दूर की बात है, चलो देखते हैं उसका अंजाम क्या है। कुरान करीम कहता है कि ये दोस्त जाएंगे और जहन्नम में झांकेंगे और झांक करके देखेंगे, फत्तला फरआहु फी सवाइल जहीम, तो झांक करके जब देखेंगे तो देखेंगे कि वो उनका दोस्त जहन्नम के बीचों बीच में नजर आ रहा है।
देखने के बाद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने उसकी बात को नहीं माना, हमने उनकी बात को नहीं सुना, हमने अकीदे तौहीद को माना, हमने बादल मौत को माना, हम उनके घाटे में नहीं आए, वरना हमारा भी अंजाम वही होता जो है भुगत रहा है, हमारा भी अंजाम वही होता जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। अपने आंखों से देखेंगे कि उसका जन्नत में उसका साथी जहन्नम में झुलस रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह तूने हमें बचा लिया। तो गोया कि आप इन वाकयात पर गौर करें, इन वाकयात पर गौर करने से ये पता चलता है, आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि बुरे यार और बुरे दोस्त और बुरी दोस्ती इंसान के लिए कितनी खतरनाक है और उसका अंजाम कितना खतरनाक हुआ करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी दोस्ती हो, हमारे हल्के के अंदर हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग अच्छे हों। इसी तरह से आप देखिए कि हमें जानना चाहिए कि शरीयत ने क्या मेयार तय किया है दोस्ती का, कि हमारा दोस्त कैसा होना चाहिए, हमारी दोस्ती कैसी होनी चाहिए, हमारे अहबाब कैसे होने चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतादिद हदीस के अंदर इसकी वजाहत फरमा दी है कि हम अगर किसी से दोस्ती अपनाएं, किसी को दोस्त बनाएं, तो ऐसे शख्स को दोस्त बनाएं जो नमाज पढ़ने वाला हो, ऐसे शख्स से दोस्ती अपनाएं जो मुआहिद हो, ऐसे शख्स को अपना दोस्त बनाएं जो बाअखलाक हो, ऐसे शख्स को अपना दोस्त बनाएं जो सच्चा हो, ऐसे शख्स को अपना दोस्त बनाएं जो ईमानदार हो, जो दयानतदार हो और जिसके अंदर अच्छाइयां पाई जाती हों, जिसके अंदर बुराइयां ना हो बल्कि अच्छाइयां पाई जाती हों, ऐसे शख्स को अपना दोस्त बनाएं। शरीयत ने यही मेयार तय किया है कि अगर हम किसी से दोस्ती अपना रहे हैं, किसी को दोस्त बना रहे हैं, तो हम देखें कि कौन है हमारा दोस्त, किसके साथ हम उठते बैठते हैं, किसके साथ चलते फिरते हैं। अगर हम दोस्त अच्छे बनाएंगे तो उनकी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर दाखिल हो जाएंगी। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वजबत मुहब्बती लिल मुतहब्बैन फिया। हदीस कुदसी है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, वजबत मोहब्बती लिल मुतहब्बैन फिया, कि मेरे लिए मेरी वजह से मोहब्बत करने वाले, दोस्ती करने वालों से मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। यानी अगर आप किसी से अपनी दोस्ती अपनाते हैं, किसी को अपना दोस्त बनाते हैं दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की भेजी हुई तालीमात पर अमल करने के लिए, तो अल्लाह की मोहब्बत हमें हासिल होगी। ये हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इसकी वजाहत फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल निस्सद्दीन, कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दुश्मनी किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए रोका, तो उसने दीन को मुकम्मल कर लिया। तो गोया कि यह हदीस हमें उभारती है, यह हदीस हमें दावत देती है इस बात की तरफ कि हमारे दोस्त अच्छे होने चाहिए, हमारे दोस्त शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। हम जिससे दोस्ती अपनाएं वो मुत्तबे किताब व सुन्नत हो, हम जिसको अपना दोस्त बनाएं वो किताब व सुन्नत का मतवाला हो, जिसको हम अपना दोस्त बनाएं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला हो और कुरान और हदीस की तालीमात पर अमल करने वाला हो। इसी वजह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 7 तरह के लोग ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। उसमें से एक शख्स वो होगा, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, कि 2 अफराद, 2 लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आपस में एक दूसरे से उल्फत करते हैं, आपस में एक दूसरे से जो है दोस्ती को अपनाते हैं, एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। उसी पर वो दुनिया में जमा होते हैं और वो दुनिया से जुदा होते हैं, तो दोस्त जो है दोस्ती पर जुदा होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उनकी दोस्ती होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान कर दिया कि ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अर्श का साया
नसीब होगा। गोया कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस दुनिया के अंदर मोहब्बत करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दोस्ती करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उनको अर्श के साये के नीचे जगह देगा। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है। और इसी तरह से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, एक सहाबी बैठे हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और एक शख्स का गुजर हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो गुजर रहे हैं मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उन्हें बताया है? कहा नहीं। कहा जाके बता दो। चल करके गए और कहा इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मैं तुमसे दोस्ती करता हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये तंबीह किया कि जाओ बता दो। और उसने भी कहा कि मैं तुमसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत करता हूं, जिस चीज के लिए तुमने मुझसे मोहब्बत किया है मैं भी तुमसे उसी चीज के लिए मोहब्बत करता हूं। तो गोया कि ये बहुत अहम चीज है, बहुत अहम पहलू है। तो हमारे जो दोस्ती का मेयार होना चाहिए वो किताब और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए कि जिसको दोस्त अपनाए वो अच्छा हो, दीनदार हो, नेक हो, नमाजी हो, मुत्तबी किताब और सुन्नत हो, मुत्तबी सलफ सालिहीन हो, सलफ सालिहीन के मनहज पर चलने वाला हो। आप देखिए मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनको कौन नहीं जानता। मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु कि अव्वल सफीर फिल इस्लाम, इस्लाम के रास्ते में दावत व तबलीग करने के लिए, इस्लाम को सिखाने के लिए सबसे पहले इन्होंने सफर किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा भेजा था कि जाओ लोगों को दीन की तालीमात सिखा दो। मक्का मुकर्रमा के अंदर ये बहुत मालदार थे, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़े मालदार घराने से थे। लेकिन जब ये इस्लाम लाए तो इनके घर वालों ने घर से भगा दिया, वालिदैन ने घर से धुतकार दिया। ये मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जो नाज़ो नेमत में पले, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फक्र फाका की जिंदगी गुजारा और मदीना मुनव्वरा जब आए, मदीना मुनव्वरा आने के बाद, मदीना में दाखिल होने के बाद लोगों को इस्लाम की तालीम दिया, इस्लाम से रोशनास कराया और जो है सादगी की जिंदगी बसर करते रहे, फक्र फाका में रहे। और जब इनकी वफात होती है ग़ज़वे उहुद में, मुहाजिरीन का झंडा इन्हीं के हाथ में रहता है, शहीद कर दिए जाते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करते हैं तो यही मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु है कि इनका मामला यह है कि मक्का के सबसे बड़े मालदार थे, लेकिन मदीना में जब इनको दफन किया जाता है तो इनके जिस्म पर सिवाय एक चादर के और कुछ नहीं होता है। दफन करने के लिए, कफन पहनाने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, वही कपड़ा एक इज़ार वही पहने हुए हैं। मक्का के सबसे बड़े मालदार और मदीना में फख्र फाका की जिंदगी गुजारने वाले जब उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करते हैं तो वो इज़ार अगर सर की तरफ ऊपर की तरफ खींचते हैं तो पांव खुल जाता है, पांव की तरफ नीचे लाते हैं तो ऊपर का हिस्सा सीना खुल जाता है। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ऊपरी हिस्से को ढक दो और पैर पर मदीना की इज़्खिर नामी घास को डाल दो। ये मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु है। अब देखिए कि एक मर्तबा ये गुजर रहे थे मदीना मुनव्वरा की गलियों से, तो इनके सगे भाई जो ग़ज़वे बद्र में कैदी किए गए थे, सगे भाई को एक अंसारी सहाबी बांध रहे थे। मुर्रिखीन ने इस वाक़े को जिक्र किया है। वो बांध रहे थे जब, तो मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा और तेजी से बांधो और सख्ती से बांधो इन्हें और मजबूत बांधो। तड़प उठे कि आप मेरे सगे भाई हैं, क्या मेरी माँ और तुम्हारी माँ एक नहीं है? इस जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि इस रोए जमीन पर इस वक्त अगर कोई मेरा भाई है तो ये अंसारी साहबी है, ये अंसारी साहबी है। कहा इसको और मजबूती से बांधो क्योंकि इसकी माँ मक्का की मालदार औरत है, बहुत ज्यादा फिदिया देकर के छुड़ाएगी, इसको मजबूती से बांधो। और देखिए उनको मजबूती से बांधा गया। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु एक तरफ उनके सगे भाई, एक तरफ इस्लामी भाई के साथ मोहब्बत और दोस्ती का यह मुजाहरा देखिए, दोस्ती का पैमाना देखिए कि पैमाना क्या था, इस्लाम था, ईमान था, सगा भाई है, लेकिन कह रहे मजबूती से बांधो और सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस्लामी भाई का। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी दोस्ती का जो मेयार होना चाहिए वो शरीयत के मुताबिक होने चाहिए।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे दोस्ती का मेयार क्या है? आज हमारे दोस्ती का मेयार जो है गलत चीजें हैं। आज हमने अपने दोस्ती का मेयार फहशगोई को बना लिया है, फहाशी को बना लिया है, ओरियानियत को बना लिया है। इसी वजह से आप देखेंगे मुस्लिम तबके में, गैर मुस्लिम तबके में, तमाम तबके में आप देख लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं कोई शराबी है तो उसके पीछे कोई उसका बुरा साथी है, कोई जुआ खेलने वाला है तो उसके पीछे उसका बुरा साथी है, कोई जो है बेनमाजी है तो उसके पीछे उसका बुरा साथी है। यानी बुरे साथियों की सोहबत में रह करके इसी वजह से माशरे में बिगाड़ पैदा हुआ कि वो चोरी कर रहा है तो अपने साथियों को देखा, अपने अलखयारा को देखा कि वो लोग चोरी कर रहे हैं तो ये भी चोरी करने लगा, देखा वो लोग शराब पी रहे हैं तो ये भी टेस्ट करने लगा, शराब पीने लगा तो देखा वो गुनाह के काम में मुलविस है तो ये भी गुनाह करने लगा। आज माशरे के अंदर बहुत सारे जराइम पाए जाते हैं, उस जराइम के पीछे बुरी सोहबत और बुरे साथी मौजूद होते हैं। उन बुरे साथियों की वजह से, बुरी सोहबत की वजह से आप देखिए बहुत सारे जराइम हो रहे हैं। आप जेल में जाकर के देख लीजिए, वहां जाने के बाद आपको पता लगेगा बहुत सारे कैदियों को आप देखिए कि उसके पीछे बुरे साथियों का हाथ है। बुरे साथी ने उनको मिसगाइड कर दिया, बुरा रास्ता दिखा दिया, लालच दिला दिया और दिला करके उनसे जराइम का इर्तिकाब करवाया और बिल आखिर वो जेल के सलाखों के हवाले कर दिए गए। आज देखिए औलाद को देखिए, आज औलाद हमारे बच्चे और बच्चियां बुरी सोहबत की वजह से बिगड़ रहे हैं, बुरे साथियों की सोहबत अख्तियार कर रहे हैं। इसमें जिम्मेदार वालिदैन हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर बनाए रखें कि हमारा बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, उसका उठना बैठना किसके साथ है, उसका चलना फिरना किसके साथ है, उसकी सोहबत किसके साथ है, उसका दोस्त कौन है। याद रखिए, अगर आप उस पर नजर नहीं रखेंगे, आप अपने बच्चे को नहीं देखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, अपने बच्चों का जायजा नहीं लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही बच्चियां, यही बच्चे जो है घर से वालिदैन को कह करके निकलते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन बुरे साथियों और बुरी सोहबत में आकर के वो गलत काम करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। अगर आज वालिदैन ने अपने बच्चों पर जो है कदम नहीं लगाया, उनकी अच्छी तरबियत नहीं किया, उनको देखा नहीं, हमें देखना चाहिए चुपके से और सामने से देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का उठना बैठना किसके साथ है, हमारी बच्ची का उठना बैठना किसके साथ है। आज देखिए कितने इब्तिदा जो फैल रहा है उसकी मेन बुनियादी वजह यही है कि बुरी सोहबत, बुरे साथी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया। बच्चा जो है अजनबी लड़की से सोहबत अख्तियार कर रहा है, उसको अपना दोस्त बना रहा है, बच्ची अजनबी लड़के को अपना दोस्त बना रही है और इस तरह से बुरी सोहबत में आकर के वो बहुत सारे जराइम और अखलाकी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। और ये वालिदैन समझते हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज गया है, हमारा बच्चा स्कूल गया है, इनको कोई फिक्र नहीं होती, वो अच्छे नंबरात ला रहा है। आप देखिए, आप टटोलिए, अगर आप अपने बच्चे का मुहासबा नहीं करेंगे, आपने मोबाइल दे दिया, वो मोबाइल देख रहा है, वो अपने बच्ची के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, वो बच्ची मोबाइल देख रही है, किससे बात कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, आपको कोई खबर नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा कि यही बच्चा, यही बच्ची गैरों के साथ निकल करके जाएगी और बुरी सोहबत की वजह से वो अखियार से जाकर के गैरों से जाकर के शादी करेगी और फिर उसके बाद अंजाम इसका ये होगा, आप जो है एहसास करेंगे कि अरे मेरी तरफ से तो गलती हो गई। उस वक्त आपको एहसास होगा कि आपने बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं की, बच्चे को अच्छा राह नहीं दिखाया, अच्छा रास्ता नहीं दिखाया, क्योंकि आपने अगर उसके ऊपर कदम लगाई होती, शुरू से आप नजर रखते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपनी दोस्ती देखें कि हमारा उठना बैठना किसके साथ है, अपने बच्चों को देखें कि उनका उठना बैठना किसके साथ है, वो किसके साथ चलते फिरते हैं। हमें जरूरी है, हमारे ऊपर है कि हम उन्हें सिखाएं कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। अगर यकीन मानिए आपके बच्चे तालीम के हवाले से अगर कॉलेज जाते हैं और बुरे बच्चों की सोहबत अख्तियार करके मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं और अखलाकी जराइम का इर्तिकाब करते हैं तो उससे
बेहतर ये है कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची जाहिर रह जाए, लेकिन ऐसी डिग्री और ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं जिस इल्म की वजह से इंसान अपनी इज्जत और नामूस को बेच दे, जिस इल्म की वजह से इंसान अपने दीन को बेच दे, अपने अकीदे का सौदा कर ले और गैरों के साथ जो है अपनी दोस्ती अपनाए। ऐसे इल्म से बेहतर ये है कि वो बच्ची दुनिया के अंदर जाहिर रह करके जिंदगी गुजारे। वो बेहतर है कि अपने दीन की हिफाजत करे, अपने अखलाक की हिफाजत करे, अपने कैरेक्टर की हिफाजत करे। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी जो दोस्ती हो वो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो, अच्छे दोस्त अपनाएं और शरीयत के मुताबिक चलें। अगर आप देखें कि आपके इर्द गिर्द लोग गलत अकीदे के हैं या नमाजी नहीं हैं, तो आप उनकी सोबत अख्तियार मत करें, क्योंकि आप आज नमाजी हैं, उनकी सोबत अख्तियार करेंगे, कल बेनमाजी हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि किताब और सुन्नत के मुताबिक अपने दोस्त अपनाएं और शरीयत की जो तालीमात मौजूद हैं उसी के एतबार से अपनी दोस्ती को बनाएं और बरकरार रखें। और यहाँ पर मैं एक तंबीह करूंगा, वो ये कि नमाज के हवाले से मैंने खुतबा देना शुरू किया तो देखा चंद तादाद मौजूद थी, चंद लोग मौजूद थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन उकसाया और उभारा है कि मस्जिद में सवेरे आना चाहिए। जो सबसे पहले मस्जिद में अव्वल सात में आएगा उसको उठने के बराबर सवाब मिलेगा। और फरिश्ते गेट पर बैठ करके नाम लिखते हैं कौन एंट्री किया। और कैटेगरी बनाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी घड़ी में जो आएगा उसको ऊंट या उठनी के बराबर, जो है पहली घड़ी में जो आएगा उसको ऊंट उठनी के बराबर, दूसरी घड़ी में जो आएगा उसको गाय के बराबर, और तीसरी घड़ी में जो आएगा उसको जो है मुर्गे के बराबर, जो है बकरी के बराबर, और तीसरी घड़ी में जो आएगा उसको मुर्गी के बराबर, और चौथी घड़ी में जो आएगा उसको अंडे के बराबर। इस तरह से सवाब की तकसीम किया है। और जैसे ही इमाम मिंबर पर बैठता है फरिश्ते अपने रजिस्टर को भी बंद कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि वक्त पर आए, अजान से पहले मस्जिद में हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, ताकि फरिश्ते आपका भी नाम लिखे कि फुला बिन फुला इतने टाइम मस्जिद में आ गया था। कारोबार तो हमें साल भर करना है, पूरी जिंदगी करना है, जब तक हमारी सांस है, जब तक हमें करना है। लेकिन ये चीजें जो हमसे छूट जाएंगी ये फिर दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिए इस पर तवज्जो दें। इन्हीं कलिमात पर मैं अपने खुतबे को खत्म करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा हमें सच्चे दोस्त अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें बुरी सोहबत से बचा ले, अल्लाह हमें बुरे दोस्त से बचा ले, अल्लाह हमें बुरे दोस्त के दरिया से ना आजमा। अल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो मरीज हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाह हम में से जो मुस्लिम और मुआहिद वफात पा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह में से जो मकरूज है अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की सबील अता फरमा दे। अल्लाह हमारा जब खात्मा हो तो तौहीद पर हो और हमारी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलिमात जारी हों। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله أمركم بأمر عظيم ألا وهي الصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر قوموا للصلاة